All right, so I was discussing actually about current density. It is the ratio of current flowing through a conductor through to the area of cross section होल्डिंग परपेंडिकुलर. अगर से थोड़ा एरिया इस तरीके से लेंगे तो फिर उसका कंपोनेंट जैसे एंगल जितना एंगल आएगा उसका कॉस कंपोनेंट लेंगे. You already know that. From that itself this comes. Current in terms of current density is J dot dA. It is the dot product of current density and area. When you solve this, you will get J dA cos theta. dA cos theta is nothing but the perpendicular component of area. ठीक है, तो dot product of any two vectors is a scalar. So you can, in that way also you can say that J is a scalar quantity. J is a vector quantity. It is a vector quantity. Now let us move on to the derivation. Yes, the first derivation, derive a relation between current density and conductivity of a conductor. Current density and conductivity of a conductor. Current density यानी J, conductivity यानी sigma. ठीक है, और you can also derive J is equal to sigma E. इसी को हमें derive करना है. ठीक है, और इसका एक और बात भी है, it is another forms of Ohm's law, microscopic form of Ohm's law भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो पुराना आपका I इक्वल्स NaEVD करंट डेंसिटी के लिए जो किया था सेम लेना है. ठीक है, सेम चीज़ लेकर के बैटरी V volts, then area is A area, then electric field is in this direction E, then electrons are moving in this direction, that is Vd. ठीक है, then let L be the length of the conductor, current flowing through it is I. ठीक है. So why did I do this so fast? Because we have already done this in I equals NaEVD. ठीक है, तो अब उसी के ऊपर हम डेरिवेशन को लेके आगे बढ़ेंगे कि हाउ इज़ इट डन. तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आई होप यू नो. अच्छा, मैंने टुडे आई ऑल्सो गिव यू शेयर्ड अ PDF showing that what is the method of writing a derivation, and also I gave one example of UV-NR relation. तो इसके लिए भी जब फिगर ड्रॉ करोगे उसके बाद आपको 4-5 लाइन लिखने पड़ेंगे कि कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L connected to a battery of V volts, let I be the current flowing through the conductor and let E be the electric field, Vd is the drift velocity and A is the area of cross section of the conductor. ठीक है, तो डायरेक्टली वी हैव I equals V by R. कहाँ से? फ्रॉम Ohm's law. From Ohm's law we have I equals V by R. ठीक है. तो I equals V by R, I'll call it equation 1. ठीक है, we know that R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. तो अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? V by rho L by A, यानी VA by rho L होगा. VA by rho L हो जाएगा. ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, VA by rho L. डन. अब उसके बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? I है. ठीक है, उसको इधर लिख लेता हूँ. लेफ्ट को लिखना था, जगह नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो I बाई A कर लेंगे तो J मिल जाएगा. तो I बाई A, बाकी चीज़ें इधर तरफ की, तो V बाई रो L. ठीक है, आपको ये डेरिवेशंस थोड़ा कंफ्यूज होंगे, एक दो एक साथ आ रहे हैं अभी. आपको यूँ सोचना है कि कहाँ से शुरू करना है और किसको लाना है. J लाना है तो I बाई A आना चाहिए, तो I बाई A आ गया. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, I बाई A इज़ वॉट? I बाई A आ गया. और क्या मिला हमें? वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ whom? ऑफ करंट डेंसिटी. वो आप लिख लो. फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी I बाई A इज इक्वल टू J. I बाई A इज इक्वल टू J, and also and we know that V by L is equal to E. V by L is equal to E. वो कहाँ से आया? E इक्वल्स डी वी बाई डी एक्स, जो रिलेशन प्रूव किया था हमने.
ठीक है, तो जब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इट इन दिस इक्वेशन, सो सब्स्टिट्यूटिंग J and E in equation 2, what you will get, I by A becomes J, V by L becomes E, and you get rho below. ठीक है, this is resistivity, reciprocal of अब देखो J आ गया, E आ गया, दोनों आ गए, सिग्मा आना बाकी है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी आप टर्म्स में लिख लो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी सिग्मा, देयरफॉर J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। तो ये आपका क्लियर हो गया एक डेरिवेशन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके डायरेक्टली आ जाते हैं। कैसे याद रखना पड़ेगा, J इक्वल सिग्मा ई प्रूव करना है, डायग्राम सबके लिए सेम है, J सिग्मा और E है, J का मतलब I से बनता है तो ओम्स लॉ आता है, तो I इक्वल्स V बाई आर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, डन। सिग्मा आ रहा है, सिग्मा आएगा रेजिस्टिविटी से, रेजिस्टिविटी आएगा रेजिस्टर से, तो रेजिस्टर रो L बाई ए, उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख लिया, I है A है, I बाई ए जाकर I बाई ए आ जाएगा एक तरफ, V बाई एल टाइम्स रो आ जाएगा, I बाई ए इज J, V बाई एल इज E, सब्स्टिट्यूट किया, J इक्वल्स E बाई रो, 1 बाई रो इज सिग्मा, देयरफॉर J इक्वल्स सिग्मा E। I hope this particular derivation is clear। ठीक है, और भी कुछ करना बाकी है, वो एक और डेरिवेशन है। Let me move forward with this। I hope till here it is clear। अल्लाह, चलो ठीक है, it is now clean। या तो आगे बढ़ते हैं, फोकस, हाँ चलो दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है, अच्छा आई थिंक आई नीड अनदर क्लॉथ, या नो, अभी भी ट्राई नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट अ क्लॉथ। या now I guess I'll be able to write visible, yeah। तो अब आते हैं एक और नए डेरिवेशन पर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, फाइनल एग्जाम्स में डायरेक्ट ही बोलता है, डिराइव सिग्मा इक्वल्स एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और जो लेजेंड्स में दिया गया है बहुत छोटा है, 5 मार्क के लिए उतना नहीं लिखना है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो मैं बताऊंगा ये डेरिवेशन करते ही कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वही आपका फिगर एज यूजुअल, कंडक्टर, ठीक है, ऑफ लेंथ L, एरिया A, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड E, electrons going like this VD, then connected to a battery of V volts, ठीक है, let I be the current flowing। ठीक है, और इसके अलावा भी क्योंकि सिग्मा रो वगैरह आ रहा है, शुरू के एक्सप्लेनेशन में वो भी इंट्रोड्यूस कर दो कि लेट सिग्मा बी द कंडक्टिविटी एंड रो बी द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया। तो डायरेक्टली इस चीज़ के लिए यहाँ पर देखो, पहला स्टेप है J इक्वल्स सिग्मा ई, पहला स्टेप है J इक्वल्स सिग्मा ई। जब आप ये करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं करोगे, पहले जो इससे पहले मैंने डेरिवेशन प्रूव किया कि J इक्वल सिग्मा ई, जो मैंने प्रूव किया पहले उसको प्रूव करोगे।
ठीक है, उसके बाद आप इस चीज़ को लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लेजेंड्स में डायरेक्टली बोल दिया वी हैव। ठीक है, इसके बजाय आप पुराना डेरिवेशन जे इक्वल सिग्मा ई तक लाओगे, अब उसके बाद आप ये आगे बढ़ोगे। ठीक है, सो उसको याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसे डॉट्स डाल के छोड़ रहा हूँ। ये लाइंस का मतलब ये है कि इससे पहले एक डेरिवेशन किया गया है प्रूविंग जे इक्वल सिग्मा ई, उसको प्रूव करना है, उसके बाद यहाँ तक आके यहाँ से आगे बढ़ना है। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल्स जे बाई ई आएगा, सिग्मा इक्वल्स जे बाई ई। ठीक है, तो नेक्स्ट बट j equals I by a, j equals I by a, therefore sigma will now be equal to I by a e, I by a e। ठीक है, relation between current and drift velocity is I equals n a e v d। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे I इक्वल्स एन ए वी डी को, तो क्या होगा सिग्मा क्या बनेगा, सिग्मा विल बी I के जगह पर एन ए ई वी डी बाई ए ई। ठीक है, एन ए ई वी डी बाई ए ई आएगा, तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाता है, तो सिग्मा क्या बनेगा एन ई वी डी बाई ई, एन ई वी डी बाई ई आ गया। ठीक है, अब वी नो दैट वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम टाइम्स टाउ, मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, तो सिग्मा क्या बनेगा एन ई बाई ई था, वी डी की जगह पर ई ई बाई एम टाइम्स टाउ। ठीक है, तो क्या हुआ ई और ई कैंसिल हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, सिग्मा इक्वल्स एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम मिल गया। तो ये आपका नया डेरिवेशन पूरा मैथमेटिकल है, कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें है नहीं, क्लियरली जो भी चीज़ें हम जानते हैं उन्हीं चीज़ों को रीअरेंज करके लिखा है। एक बार वापस दोहरा देता हूँ, उसके बाद शायद आगे बढ़ सकते हैं। वापस वही फिगर है, पहले जो पुराना डेरिवेशन किया जे इक्वल सिग्मा ई, उसको कैसे प्रूव किया था, आई इक्वल्स वी बाई आर से शुरू किया, फिर उसमें आर इक्वल्स रो एल बाई ए डाल दिया, फिर रीअरेंज किया और डेफिनेशन के हिसाब से जे को अलग किया, ई को अलग किया, और रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी, उसको यूज़ करके जे इक्वल सिग्मा ई प्रूव किया। उसके बाद आपको उसमें से सिग्मा इक्वल्स जे बाई ई लेना है, जे को फिर वापस आई बाई ए लिखना है, आई बाई ए ई होगा, आई इक्वल्स एन ए ई वी डी लिखना है, फिर वी डी को ई बाई एम टाउ सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल करके आंसर लिखना है। आई होप दिस डेरिवेशन हैज़ बीन क्लियर्ड। अब इसके बाद आपको जाना चाहिए, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ द रेजिस्टर पार्ट ऑफ इट, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू प्रूव जे सिग्मा इक्वल्स एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इन अनदर वे। ठीक है, वो अनदर वे क्या है, सेम ही है टू बी ऑनेस्ट, बट ऑल्टरनेटिव तरीके से गए हैं, ऑर्डर थोड़ा अलग हुआ है, उसको भी मैं बता देता हूँ। आई राइट इट हियर एज एलिटर यानी ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ये है कि पहले डायरेक्टली वी डी इक्वल्स ई ई बाई एम टाउ से शुरू करेंगे, वी डी इक्वल्स ई ई बाई एम टाउ से शुरू करके अब उसमें हम कहेंगे E इज़ V बाई एल, तो ई वी बाई एम एल टाउ, दैट इज़ वी डी, ई वी बाई एम एल टाउ। ठीक है, अब फिर वी नो दैट I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, तो एन ए ई वी डी की जगह ई वी बाई एम एल टाउ। ठीक है, तो क्या बचेगा एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल, करेक्ट है, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल टाइम्स वी, वी बाहर है। ठीक है, तो इतना आएगा, डन। अब उसके बाद इधर तरफ आई है, तो वी बाई आई करेंगे, वी बाई आई इज इक्वल टू यानी वी आई, ये सारे चीज़ों को उल्टा कर दिया, तो एम एल बाई एन ई स्क्वायर, ठीक है, ए टाउ, एम एल बाई एन ई स्क्वायर
ए टाउ, ठीक है। तो ये वाला पूरा कांस्टेंट मिला करके होता है आर, तो V बाय आई इक्वल्स आर, ठीक है। द होल ऑल ऑफ दोज कांस्टेंट्स टुगेदर इज रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। अब R क्या हुआ, R की वैल्यू क्या हुई, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, R इज एन ई स्क्वायर एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। अब फिर इसमें m बाई एन ई स्क्वायर ए, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ टाइम्स l बाई ए कर लेंगे, l बाई ए को आगे बाहर लेंगे, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को हम कहेंगे इट इज़ रो l बाई ए, वेर ये तमाम चीज़ें जो है इट इज़ गिवन एज रो रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो l बाई ए आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको मिला रो क्या मिला, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो सिग्मा क्या होता है, 1 बाई रो, तो सिग्मा क्या होगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम जो सेम है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपको याद होगा भी नहीं, लेकिन करवाया किस लिए, करवाया इसलिए क्योंकि इसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली, तमाम इतने सारे कांस्टेंट्स मिलके R बन रहा है और ये कांस्टेंट्स मिलके रो बन रहा है। ये दो चीज़ें आपके इस वाले तरीके में मालूम होती हैं, दिस वे यू विल नॉट गेट टू नो इट, एंड दिस वे इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गेट टू नो व्हाट इज़ द डिपेंडेंस। R देखो एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ है, R और N कैसे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। सो दिस रिलेशन शोज डिपेंडेंस। सो आई प्रेफर फॉर PU लेवल, फॉर PU एग्जामिनेशन लर्न दिस वे, ठीक है। बट इन दिस वे प्लीज रिमेंबर दैट आई हैव मार्क्ड एटलीस्ट, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर सब कुछ ब्लैंक जा रहा है, तो फिर इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ों को हमें यूज़ करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन आपको मिले। तो हियर इफ़ यू सी सिग्मा इक्वल्स एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, यू कैन सी ई स्क्वायर ई बाई एम, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, वी डी से आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने वाली है जो यहाँ पर आई है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी ई बाई एम टाउ, ठीक है। और एन आ रहा है, एन कहाँ आया था हमारे पास, आई इक्वल्स एन ए ई वी डी से आया था, तो आई इक्वल्स एन ए ई वी डी यूज़ होगा, तो ये और ये यूज़ हो गए, यानी आधा डेरिवेशन इक्वेशन में मालूम हो गया कि ये दो इक्वेशन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ क्या है, सिग्मा से शुरू हो रहा है, सिग्मा किस में है, जे इक्वल सिग्मा ई में है, तो सिग्मा इक्वल्स जे बाई ई करके उसके बाद आई सब्स्टिट्यूट किया, फिर वी डी सब्स्टिट्यूट किया। सो आई होप इफ़ यू जस्ट यूज़ सम स्मार्ट वर्क, it is really easy to remember these things. Next up we'll go to resistors and cells, resistors in series, resistors in parallel, cells in series, cells in parallel, and also derive one relation for a battery, ठीक है। These are the most important questions। और उसके बाद एक और है, वो है कि किरचॉफ लॉ, वो बहुत ही important है। So this, as I told you before, this chapter carries very high amount of weightage. So my suggestion, please study this chapter really well. हर एक derivation जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, do it 5 times 10 times until and unless it fits in your brain. Keep doing it. ठीक है। And the way to check whether you have learned the derivation or not is, if you have solved today, आज practice करके याद करके पूरा solve किया बिना देखे, 2 दिन बाद फिर उसे बिना देखे ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर कर सकते हो तो समझो आपको डेरिवेशन पक्का है, 2 दिन बाद अगर आप नहीं कर सकते तो समझो आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। स्टॉप एट दिस, थैंक यू।